But then one of the main things that interested me in Forest Lawn was Michelangelo's the great sculpture, the monument of Moses. मगर एक और अनोखी वस्तु ने मेरा ध्यान खींचा, वह महान कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूसा नबी की महान मूर्ति की नकल थी। It's a reproduction there, of course. It isn't the original. असली मूर्ति की वह नकल या अनुकृति थी, But it was such a great masterpiece. मगर ये नकल भी अत्यंत सुंदर और महान कारीगरी है। And as I stood and looked at it, I liked that. Something that looks like it's represents, got something to जब मैं उसे देख रहा था तो लग रहा था मानो वे कुछ विशेष भाव जाहिर कर रही हो। it. I like art real well. I believe God is in art. मुझे कला से प्रेम है और मेरा विश्वास है कि कला में भी परमेश्वर है। I believe God is in music. I believe God is in nature. God's everywhere. मेरा विश्वास है कि संगीत में भी परमेश्वर है, कुदरत में भी है, वो सब जगह है। And anything that's contrary to the original is a perversion. और जो कुछ भी असली या मूल नहीं वह विकृत है। God is in dancing. Not the kind of dancing you do here. But when the sons and daughters of God are in the Spirit of God. That's dancing. नाच में भी परमेश्वर है, परंतु जो नाच नृत्य आप इन दिनों करते हैं उनमें नहीं है। मगर जब परमेश्वर के बेटे बेटियां पवित्र आत्मा से भरपूर होकर नाचते हैं तो वह वास्तविक नृत्य होता है। But like I had to contend with at 2 o'clock this morning up there in the lane, that's the perversion of it. मगर ऊपर उस गली में जिस तरह का नाच हमें रात 2 बजे तक कष्ट देता रहा, वह नृत्य नहीं, एक ढोंग और विकृति है। But this masterpiece that Michelangelo had made, it cost him something to do that. लेकिन माइकल एंजेलो महान की ये जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, इसके लिए कलाकार को बहुत मूल्य चुकाना पड़ा था। That he was a great man, and it cost a big part of his life because he was many years and carving out. इस मूर्ति को बनाने तराशने में उस कलाकार के अपने जीवन के कई वर्ष लगे थे। Just take a rock and a marble and keep carving it. एक संगे मरमर की चट्टान को काटना छांटना मुश्किल काम था। And to see only the man, the sculptor himself, has in his mind what he's trying to do. He's the one. मूर्तिकार ही वो आदमी होता है जिसके मन में उसकी रचना के रूप और आकार की कल्पना रहती है, जिसे वह मूर्ति का रूप देना चाहता है। You might walk up and say to him, "What are you pecking on that rock for?" आप उसके पास जाकर उसे चट्टान को यहाँ वहाँ से काटते छांटते देखेंगे तो कौतूहलवश पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। To the outsider who doesn't know what's in his heart, it's nonsense. बाहरी व्यक्ति को तो ये सब काम बेकार सा लगेगा, But the man, the sculptor himself, he's got a vision in his mind what he's trying to make. लेकिन मूर्तिकार के हृदय में उस रचना का पूरा चित्र है, कल्पना है, जिसे वे ठोस रूप में बनाने में व्यस्त है। And he's trying to reproduce what he has on his mind in the form of a monument. और जो कुछ उसके दिमाग में है उसे वे मूर्त के रूप में ढालने की कोशिश करता है। That's the reason he's digging it out of the rock. और यही कारण है कि वो उस पत्थर को काटता छांटता रहता है। And this to do, you have to start off right at the beginning. And you have to follow the pattern. इसी काम को करने के लिए ही उसे काल्पनिक नमूने के अनुसार चट्टान को शुरू से छांटना पड़ता है। So you can't get a little piece, start off, we'll make it this way. No, I believe, no, he's got to have a exact pattern. एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर आप एक बड़ी मूर्त बनाना शुरू नहीं कर सकते। And in his mind, he's got that pattern, and he cannot vary from that pattern. उसे पूरे नमूने की तस्वीर अपने दिल में रखनी पड़ती है और रचना के दौरान वो उस नक्शे से हट नहीं सकता। Now, in order to do this, he had to draw in his mind because we have no real pictures of Moses. हमारे पास मूसा का कोई असली चित्र नहीं है जो हम मूर्तिकार को दे सकते। But he had to get a mental picture in his mind of exactly what Moses was. मूर्तिकार को तो खुद हृदय में उसकी तस्वीर बनानी पड़ेगी और सर्वप्रथम माइकल एंजेलो ने यही किया
कि मूसा का काल्पनिक चित्र मन में बनाया। Now, a genuine sculpture is inspired, like a genuine poet or any genuine singer, musician, whatever it might be. All real has to come by inspiration. किसी भी मौलिक संगीतकार, गायक या कवि के समान ही मूर्तिकार को एक प्रेरणा मिलती है, जिसके कारण वह सच्ची कला पेश कर पाता है। Michelangelo must have had the inspiration of what Moses really looked like, and he caught it in his mind. What Moses must be. माइकल एंजेलो को भी मूसा के असली रूप की प्रेरणा मिली होगी कि मूसा कैसा रहा होगा। And so he set forth on this great piece of marble, cutting to the pattern. और उसी को ठोस रूप देने के लिए उसने संगमरमर की चट्टान को अपने नक्शे के अनुसार काटा, छांटा। And bringing down and honing down until you got to the real picture of what it must have been in his mind. और उसे तराश कर वही रूप दिया जो उसके मन के नमूने के समान था। And then when he got all so perfect, और जब उसने मूर्ति को देखा कि ठीक है, every corner off and every place rubbed and the eyes just right and every hair and beard all just the way it was, he stood off and looked at it. उसके सब कोनों, नोकों आदि को ठीक से छीला गया था। उसने देखा, आंखें, नाक, कान, सिर के बाल, दाढ़ी सब मन के नमूने के समान ठीक सजा संवार लिया गया है और मूर्ति तैयार हो गई है। तब दूर खड़े होकर कलाकार ने उसे देखा। I think of many hard years of labor and how he had to hold that same vision all the time in his mind of what he was going to do. मैं उसके वर्षों की कठिन मेहनत के बारे में सोचता हूँ कि इतने वर्षों तक उसे अपने मन में दर्शन के उस नमूने को संजोए रखना पड़ा। And just think that vision on his mind for so many years to make it look just exactly to what it was. और जरा सोचें, वह दर्शन उसके दिमाग पर कितने वर्षों तक छाया रहा। He caught the vision first, and how he had to work to that vision, cutting off and making down. पहले उसे दर्शन मिला और उस तरह से उस दर्शन के अनुसार उसे चट्टान तराशनी पड़ी। And when he got it to where he perfected it, till it really got perfect. और तब अंत में जाकर कहीं उसे सिद्ध मूर्ति में ढाला और मूर्ति सिद्ध बन सकी। He stood and looked at it when he finished up that morning with the hammer in his hand. उस सुबह वहाँ खड़े होकर उसने मूर्ति को देखा, हथौड़ा उसके हाथ में था। And he was so inspired when he looked at it, because the vision of his mind was standing before him in reality. वह अत्यंत प्रेरित था क्योंकि उसका दर्शन साकार रूप में उसके सामने खड़ा था। What he had seen and his conception of what Moses was, there it was figured before him. उसने जो कुछ देखा था कि मूसा कैसा रहा होगा, वही अब सामने सजीव उभर कर आया था। And what he'd had in his heart all these years of toils and hours of sorrow and distress and critics and everything else. इतने सालों तक उसने मेहनत करी, दुख झेले और आलोचनाएं सुनी, But yet he stayed right with the vision until it was completed. मगर वो अपने दर्शन की तस्वीर के प्रति सच्चा रहा जब तक कि वैसी मूर्ति बन न गई। And then when it was completed, he stood back with the hammer, sculpture's hammer in his hand, and he looked at that monument. उस दिन वह मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, हथौड़ा उसके हाथ में था। And the inspiration of the vision that he had seen of how to do it inspired him so much till the inspiration struck him till he got beside himself and struck it across the knee and said, "Speak!" उसे ऐसा लगा कि उसके सामने मूसा ही खड़ा है और उसने आत्म विभोर होकर और यह देखकर कि ये दर्शन के अनुरूप मूसा खड़ा है, वह इतना उत्साहित हो उठा कि उसने मूर्ति के दाहिने घुटने पर हथौड़े से एक चोट मारी और कहा, बोल। Now, there's a flaw on that great image. On the knee, on the right knee. आज भी उस मूर्ति के दाहिने घुटने से लगभग 6 इंच ऊपर एक चोट का निशान है, एक कमी है। Just above the knee, about 6 inches, is a place. I put my hand on it. About that deep. मैंने अपना हाथ स्वयं उस गड्ढे में डाला था,
वो काफी गहरा है। ये कमी उस मूर्ति में आज तक बनी हुई है। After he had spent all that time for years and years to make this, जिस प्रेरणा को पाकर उसने इतने वर्षों तक परिश्रम करके जो ये सुंदर मूर्त गढ़ी, then under the influence of seeing fulfilled what he had seen in his heart, in his vision and desired to see, it was completed. उसके पूरा होने पर उसे देखकर जो प्रभाव उस पर हुआ कि जो दर्शन में उसने देखा था, जिसको मूर्ति को वो जिस रूप में देखना चाहता था, वही सामने खड़ी है। And when it was completed, he was so inspired by it till he thought his own masterpiece should speak back to him. और ये सब देखकर उसे ये प्रेरणा मिली कि ये मूर्ति जो उसकी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम रचना है, वह उससे बात करे। And he struck it across the leg and hollered, "Speak!" And it made a flaw on it. इसीलिए उसने मूर्ति के घुटने पर हथौड़े से चोट मारी और चिल्ला उठा, बोल। हथौड़े की उस चोट से मूर्ति दोषपूर्ण बन गई। It put a flaw on the image. इससे उस मूर्ति में एक दोष आ गया। To me, the flaw was what made it the masterpiece. मगर मुझे लगता है इस त्रुटि ही के कारण वह मूर्ति सर्वोत्तम रचना बन गई। Now, maybe to the mind that might think different, you think that spoiled it. शायद दूसरे लोग कहेंगे कि इस निशान के कारण ही मूर्ति बिगड़ गई। No, to me, it made it what it was. मगर मैं सोचता हूँ कि इस निशान की वजह से ही मूर्ति सर्वोत्तम बन गई है। Because after so many years of careful work and toils and inspiration and so forth of making it, क्योंकि इतने सालों के कड़े परिश्रम से उसने इतनी सुंदर मूर्त गढ़ी कि वह उसे असली मूसा दिखाई देने लगी। his toil had proved not in vain. It was perfect, and that's why he cried out, "Speak!" और उसकी आवाज सुनने की इच्छा से अनजाने में वह चिल्ला उठा, बोल, और हथौड़े से चोट कर बैठा। Because he had seen before him that he was been able to achieve to bring to pass the vision that was in his mind. क्योंकि उसने अपने दिमाग के चित्र या दर्शन को बहुत साकार रूप में देखा। And therefore, under inspiration, he done something out of the reason, out of the ordinary. He struck it and hollered, "Speak!" और उस प्रेरणा की उत्सुकतापूर्ण हालत में बिना सोचे समझे असाधारण मन स्थिति में उसने उस पर प्रहार किया और चिल्लाया, बोल। See, he wouldn't have done that if he'd have thought. But he didn't think. उसने बिना सोचे समझे वैसा किया, वरना वह वैसा नहीं करता। It was inspiration of seeing what he had in his mind, sitting there perfectly before him. उस प्रेरणा को जो उसके दिमाग में थी, उसने सामने साकार खड़े देखा था। His toils and wearies and long nights and housed away from the world for days. वर्षों उस पत्थर को काटता, छांटता, छीलता, चिकनाता, सुधारता, रात दिन मेहनत करता, लगातार आम लोगों और कोलाहल से वह दूर रहा। And maybe eat a sandwich and rub on it and get back and no, that's just not the way it was. I've got to come down to this and rub it. ज्यादातर वो मूर्तिकार भूखा रहा, बस कभी कुछ थोड़ा सा सैंडविच खा लिया, फिर आया मूर्ति को फिर तराशने लगा, फिर गया थोड़ा सा कुछ जरा सा भोजन किया, फिर आया और फिर मूर्ति को बनाने में लग गया। And then when he saw it just perfect, then he saw in reality the negative of what was in his mind had become real. It become positive. और जब उसने देखा कि मूर्त साकार सिद्ध बनी है और जो नेगेटिव रूप उसके मन में था वही साकार रूप में पॉजिटिव बनकर सामने खड़ा है, Therefore it sprung into him. It was so real that he must cry out, "Speak!" वो इतनी सजीव बनी थी मूर्ति, तभी तो वो चिल्ला उठा, बोल, क्योंकि मूर्ति एकदम सिद्ध थी। To me, it was a reflection. मैं सोचता हूँ कि जो कुछ उस कलाकार ने कल्पना में देखा था वह उसका साकार रूप थी। It was a compliment to his work. That his own work so inspired him that he would become beside himself to smite it and say, "Speak." वह मूर्तिकार की मानो प्रशंसा सी करती थी कि उसने अपनी प्रेरणा से एक ऐसी रचना करी थी जिसे देखकर वो अपना होश खो बैठा था और चिल्ला उठा था
बोल। I stood there and looked at the monument. मैं उस महान रचना के सामने खड़ा उसे देख रहा था। I thought of the hours that the man must have put in making that. They said how many years it was. मैं तो ये सोच रहा था कि इसे बनाने में उसे कितने घंटे लगे होंगे, मगर पता लगा कि इसे बनाने में कितने ही वर्ष लग गए। But it was a reflection to him because it was a contribution to his great art, his great work of what he was doing. मगर ये रचना संसार को उसकी याद दिलाती रही जिसकी ये रचना है, क्योंकि आखिरकार वो उस महान रचना को रच सका। And when he finally was able to achieve it, it was so great. और अंत में जब ये मूर्ति वो बना चुका तो ये उसकी एक महान कृति बनी। Now let us turn the page of Michelangelo and close the book. आइए अब माइकल एंजेलो की चर्चा बंद करें। Let's open another book and read of the great sculpture, the Almighty. आइए अब उस महान शिल्पी सर्व सामर्थी परमेश्वर की पुस्तक खोलें, Who, before there was a world, and before the foundations was laid, he had in his mind what he wanted. जिसने पृथ्वी की नेव डालने से पूर्व ही अपने मन में एक ऐसी वस्तु मनुष्य बनाने की कल्पना करी थी। And he wanted to make man in his own image. और वो चाहता था कि वे मनुष्य उसके ही स्वरूप में बने। He wanted to make something in reality of what was a vision to him, what was in his thinking. वह एक दर्शन या प्रेरणा पाकर एक ऐसी ठोस चीज बनाना चाहता था जो उसके मन के नमूने के समान हो। Now to Michelangelo, that was an attribute of his thought. माइकल एंजेलो के मन की कल्पना का रूप मूसा की मूर्ति थी। And God wanted to make a man after his image, the great sculpture. And he went to work on him. खुदा अपनी प्रेरणा के अनुसार मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना चाहता था, अतः वह उसे रचने लगा। And we notice as he brought up from the materials, first perhaps the fishes and then the birds and then the creeping things upon the earth and many things that he brought. जैसा कि हम सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन में पढ़ते हैं, उससे पता चलता है कि विभिन्न वस्तुओं में से पहले उसने शायद मछलियां बनाई, फिर पक्षी, फिर रेंगने वाले विभिन्न कीड़े मकोड़े, सर्प आदि बनाए। But finally, as he brewed, being creator, yet अंत में सृष्टिकर्ता के नाते उसने अपनी सभी रची चीजों को देखा। he wasn't like a man now, a sculpture that has to take something that's been created, a human image. He was the sculpture of eternal things. पर वो मनुष्य नहीं था कि उसे कुछ बनाने के लिए पत्थर लेकर तराशना पड़े या पहले से पाई जाने वाली किसी चीज से मूर्ति गढ़े। वह तो अनंत कालिक वस्तुएं बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। He was a sculpture that could create and bring into existence that which he has in his mind to do. अब वह अपने मन की कल्पना के अनुसार ही वस्तुएं उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। Or otherwise, he can make material what his attributes desired. और yही नहीं, अपने गुणों की जरूरत के अनुसार वह सामग्री भी रच सकता है। And as he began to work upon creeping things, like upon the little animals upon the earth. जब परमेश्वर ने रचना शुरू करी तो पहले उसने रेंगने हारे जीव जंतु बनाना शुरू किया। And then he began to bring it from that into something else higher. और इसके बाद उसने उनसे उन्नत जीवधारी बनाए। Then finally he brought it into the larger animals, such as the lion, tiger, bear. और अंत में उसने शेर, सिंह, भालू आदि उन्नत पशुओं को बनाया। Then he brought it into the life of maybe a monkeys and apes and so forth. और इसके बाद हो सकता है उसने बाद में बंदर, लंगूर आदि बनाए। Now, not an evolution, as we think that one came from the ape. ये डार्विन का प्रगतिवाद नहीं था। That was a complete creation. God working in a pattern. मगर ये पूरी तरह से नई नई रचनाएं थीं। परमेश्वर एक योजना पर काम कर रहा था। But finally, there came forth upon the earth a perfection. And that was a man. पर अंत में उसने धरती पर एक सिद्ध रचना बनाई
और वह मनुष्य था। And then he could see in that man that it looked like him. इस प्रकार वो मनुष्य परमेश्वर ही का प्रतिबिंब था, उसी का स्वरूप था। So now, when he looked upon him, he was a reflection of what his creator was. अतः जब उसने उस मनुष्य को देखा तो पाया कि उसका रचनेकार कैसा है। God had now been able to achieve the thing that he wanted, a man in his own image. अब परमेश्वर की मंशा पूरी हुई और मनुष्य में उसने अपने ही स्वरूप को देखा। And then I might say to this that when he made this man, there was something about him yet that didn't look just right. Because that he was by himself. अब मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य की रचना हो गई, तब खुदा ने उसमें ऐसा कुछ देखा जो पूरी रीति से ठीक नहीं था। And that's how God had been by himself. He was the eternal. और क्योंकि परमेश्वर तो अनंत है और एक है। And the man now in the image of God also existed on the earth by himself. और मनुष्य भी जो अब धरती पर अकेला था, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में था और अकेला था। So he must have struck a little blow over on his left side. And from there he took the piece that struck off of it and made him a helpmate, a wife. इसीलिए असंतुष्ट होकर उसने मनुष्य पर प्रहार किया, जिससे मनुष्य के शरीर का एक टुकड़ा अलग निकल पड़ा और उसी से खुदा ने मनुष्य की सहयोगिनी यानी उसकी पत्नी बना दी। Then he wasn't by himself. He had somebody with him. And that's his great work. अब मनुष्य अकेला प्राणी न रहा, उसे एक संगनी मिल गई और यही परमेश्वर की महान सृष्टि है, रचना है। As any great sculptor would take his masterpiece. जैसा कि एक मूर्तिकार के सामने हमेशा होता है। Now first he had a masterpiece of himself. सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने उसकी रचना मनुष्य ही उसका प्रतिरूप थी। But now he seen that the masterpiece was lonesome like he was, so he divided the masterpiece by striking it in the side and brought forth a helpmate. खुदा की तरह ये रचना अकेली थी, इसीलिए उसने उस पर प्रहार करके उसे विभक्त कर दिया, बांट दिया और उसकी पसली से उसकी संगनी बना दी। And now to make the two one, he put them like any great sculpture in a place that it's beautiful. और अब इन दोनों प्राणियों को एक करने के लिए किसी भी शिल्पकार की तरह उन्हें एक अत्यंत सुंदर बागीचे में रख दिया। A sculpture wouldn't make a great masterpiece and then take it and set it in an alley somewhere or hide it behind buildings. क्योंकि कोई भी शिल्पी अपनी सुंदर प्रतिमा को कहीं खाट के नीचे या किसी संकरी गली या मकान के पिछवाड़े नहीं फेंक देता, पर कहीं चौराहे में या किसी अच्छी जगह रखता है कि लोग उसकी सुंदरता देखें। As our Lord told us, a man doesn't light a candle and put it under a bushel. हमारे प्रभु ने कहा, मनुष्य दिया बार कर उसे किसी नपुए के नीचे ढककर नहीं रखते, पर दीवट पर रखते हैं कि वे घर के अन्य लोगों को उजाला दे। When we become God's masterpieces, we're not hid in an alley somewhere. We must give light. मनुष्य को भी परमेश्वर ने प्रकाश फैलाने के लिए बनाया है, हमें उजियारा फैलाना जरूरी है, हम उसकी रचना है। So we see that he, after he made this masterpiece, he placed it up here on the earth and put it in the most beautiful place there was, in the Garden of Eden. हम देखते हैं कि अपनी उस सर्वोत्तम रचना बनाकर उसने उसको धरती की सबसे सुंदर अदन बारी में रख दिया। He placed his masterpiece, the two being one, in the Garden of Eden. अदन की बारी में उसने अपनी सर्वोत्तम रचना यानी नर और नारी यानी पूर्ण मनुष्य को रख दिया। How it must have pleased him that he saw this masterpiece was well. अपनी उस सुंदर वो अच्छी रचना को यानी स्त्री और पुरुष को अदन के सुंदर बाग में रखकर वो बड़ा खुश हुआ। After that we find out that he rested. He was so well pleased with his work.
और इसके बाद हम पाते हैं कि वो अपने काम से विश्राम करने चला गया, क्योंकि वो अपनी उस रचना से बेहद खुश था। I remember that my opinion, the masterpiece is the stroke that marred San Angelo's Moses masterpiece in the monument. याद रखिए कि मेरी नजर में सान एंजेलो वाले मूसा की मूर्ति की सर्वोत्तमता वह प्रहार था जो उस पर किया गया था। And it was a stroke that cut the side of his masterpiece that brought out the bride. और परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना पर किया गया वह प्रहार था जिसमें से दुल्हन निकल कर आई। And now we see them as a masterpiece family in the Garden of Eden. और अब हम उन्हें बागे अदन में सर्वोत्तम परिवार के रूप में देखते हैं। How beautiful it was, and it so pleased him till he took rest there, and he said, I'll rest. वह सब कितना सुंदर था, यही देखने के बाद उसने आराम किया और कहा, मैं आराम करूंगा। But while he was resting and trusting to his masterpiece, his enemy come in and found this great masterpiece. लेकिन जब वो आराम कर रहा था और अपनी सर्वोत्तम रचना पर भरोसा किए था, तो उसके शत्रु ने उस महान सर्वोत्तम रचना को पा लिया। And he, by deceit, he crawls under the garden walls, and then he marred this beautiful masterpiece. तब धोखे से अदन बाटिका की दीवार में वह घुसा और उसने इस सुंदर सर्वोत्तम रचना पर चोट करी। He marred it so that it fell. उसने इस तरह से उस पर प्रहार किया कि वह रचना स्तर से गिर गई। Now, the body work that come on to this great masterpiece was the prophets, which was the Word. अब इस बड़ी सर्वोत्तम रचना पर देह बनने का काम शुरू हुआ, जो कि भविष्यद्वक्ताओं का माध्यम था, जो स्वयं वचन थे। I hope you can read it. मेरा विचार है कि आप बात समझ रहे हैं। The prophets, not the laws, the prophets. व्यवस्था नहीं, वरन नबी, भविष्यद्वक्ता। For the prophets was the vindicated word, which makes the body. क्योंकि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का जीवंत वचन थे, जिनसे देह बनती है। Not the patriarchs, the prophets. They were the word. पितर या पुरखा नहीं, वरन नबी वचन थे। Finally, as he started way back in the days of Moses and come down through the prophets to each one, परमेश्वर ने पीछे मूसा के दिनों से शुरू किया और नबियों के द्वारा आगे को बढ़ता चला गया। and finally building up the body, coming closer all the time, and the greatest of all of them was John. The Bible said so. निरंतर देह बनती चली गई और सर्वोत्तम रचना की देह बनते बनते बढ़ती गई, तथा अंत में भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक पहुंची। पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है कि वह सबसे महान था। Jesus said it. There's not a man ever born of a woman as great as John the Baptist. For he was the one that could introduce the word. यीशु ने कहा था कि जितने औरतों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि एक वही था जो वचन को परिचित करा सकता था। And then come finally the great head. The head of all of it. The rest of the body just spoke of it. और तब अंत में महान सिर, संपूर्ण वचन आ गया, जिसके बारे में बाकी सारी देह ने भविष्यवाणी करी थी। The foundation was laid by the patriarch, but the body was built by the word, which was the prophets. पितरों के द्वारा आधारशिला रखी गई, लेकिन देह नबियों के द्वारा बनी, जो कि वचन थे। Here comes the head of all of it. Jesus came on the scene. और सबका प्रमुख वह सिर प्रकट हुआ, यीशु दृश्य में आया। There, when this headpiece was put up on it, we find in him the entire handiwork of God. और जब वो ऊपर वाला सिर का भाग उस पर रखा गया, तब उसमें हमें परमेश्वर के हाथ की कारीगरी दिखाई दी। We find in him the perfect reflection of the Word, for he was the Word, the fullness of the Word. उसमें हम वचन की सिद्धता की झलक पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं
पूर्ण रूप से सिद्ध वचन था। Now again God has the perfect masterpiece again. अब परमेश्वर के पास फिर से एक सर्वोत्तम रचना थी। As Isaiah said, behold my servant, my masterpiece, that I have portrayed through all the ages of this perfect one coming in. Here he stands right before me. A perfect. जैसे यशायाह ने कहा है, हे मेरे दास, मेरी इस सर्वोत्तम रचना को देख, जिसकी छवि को मैं युगों से उभारता हुआ इस एक सिद्ध आने वाले तक लेकर आया हूँ, और अब वह ठीक मेरे सामने सिद्ध खड़ा है। There in his own image, reflecting God. For he said in St. John 14, when you see me, you see the Father. यीशु अपने स्वरूप में परमेश्वर की प्रतिछाया था, क्योंकि यूहन्ना 14 में वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। And then in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was hewed out and reflected what the Word was at the beginning. और फिर ये भी है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और फिर वही वचन जो शुरू में था वो ढाला गया और देहधारी हुआ। Him the Word, reflected in the masterpiece, in His own likeness. God, back again in His own likeness, the Word form being reflected in the image of a man. The masterpiece. परमेश्वर वचन अपने स्वरूप में इस सर्वोत्तम रचना में जाहिर हुआ। परमेश्वर एक बार फिर से अपने स्वरूप में यानी वचन एक मनुष्य के रूप में सर्वोत्तम रचना बन गया। All the prophets had flaws. All but one just a portion. सारे भविष्यद्वक्ताओं में कमियां थीं और सभी उस सर्वोत्तम रचना का भाग थे। But here at last, coming up through that, finally comes the masterpiece, the perfect one. मगर आखिर में इन्हीं से होकर वो सिद्ध सर्वोत्तम रचना प्रकट हुई। No fault in him at all. So perfect, reflected of the builder himself, his own image was reflected in his work. वो इतना सिद्ध था कि उसमें कोई दोष नहीं था और उसमें उसके बनाने वाले का प्रतिबिंब था। उसका अपना स्वरूप उसकी रचना में जाहिर हो गया था। God and Christ were one, in so much until he put his own spirit into him, and then even the image and the builder became one. परमेश्वर और मसीह इस सीमा तक एक आकार थे कि परमेश्वर ने अपना आत्मा उसमें डाला और तब उसे बनाने वाले शिल्पकार और उसका स्वरूप वह सर्वोत्तम रचना एक हो गए। God and his sculpture work, his masterpiece. परमेश्वर और उसका शिल्प वह रचना एकाकार हुए। Where Moses was in the work of St. Angelo or Michelangelo rather, was a sculpture work that was dead because it had been made out of stone. मूसा की वो मूर्ति जो माइकलएंजेलो ने बनाई थी, जो शिल्पकार की कृति थी, वो मृत थी क्योंकि वो पत्थर से बनी थी। But here, the master builder, when he got his handiwork perfected, he stepped into it. मगर यहाँ महान शिल्पकार ने जो सर्वोत्तम रचना बनाई, उसमें स्वयं उसके शिल्पकार ने प्रवेश किया जब उसने उसे सिद्ध सर्वोत्तम रचना बना दिया। So perfected a redeemer of man, so perfect, so godly, yet there was no beauty we should desire him. मनुष्यों को छुड़ाने वाला कितना सिद्ध, कितना धार्मिक, कितना भला था, फिर भी लिखा था कि उसकी ऐसी कोई सुंदरता न थी कि हम उसे देखने की चाह करते। When this virgin born son of the living God becomes so perfect and humble and in the image of God. जब कुंवारी से जन्मा जीवते परमेश्वर का ये पुत्र उसी के स्वरूप में एकदम सिद्ध और नम्र बन गया। Until the great master who had brought his life up through the prophets, and he was the fulfilling of all the prophets. यहाँ तक कि वह महान शिल्पकार परमेश्वर जो इस सर्वोत्तम रचना के जीवन को अनेकों भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यहाँ तक बना कर लाया था,
हालांकि यीशु स्वयं सभी नबियों की परिपूर्णता था। He was so perfect until God, seeing this, He smote him and cried out, "Speak!" As Michelangelo did. Speak! वो इतना सिद्ध था कि परमेश्वर ने उसको मारा और चिल्ला उठा कि बोल, जैसे कि माइकल एंजेलो चिल्ला उठा था। Now, closing in a few minutes, I want you to notice real close something just happened. अब कुछ ही क्षणों में मैं बात समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अधिक ध्यान से सुने। अभी भी कुछ घटित हुआ है। Malachi 4 is to bring back to the original. मलाकी 4 को सभी कुछ लौटा कर मूल स्थिति पर लाना है। Remember, Angelo could only cry out and smite the image and say, "Speak!" याद रखिए, माइकल एंजेलो केवल अपनी मूर्ति पर चोट मारकर चिल्ला भर सकता था कि बोल। But how different it was to God, the great sculptor. मगर परमेश्वर जो कि महान शिल्पकार है, उसकी बात कितनी भिन्न है। When He made a man in His own image so perfect that it reflected Him, God spoke through the image of man, showing what He would do. जब उसने एक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, वो इतना सिद्ध था कि परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर रहा था, तो परमेश्वर उस मनुष्य के स्वरूप में से होकर बोल उठा और उसने ये दिखा दिया कि वह क्या करने जा रहा है। That He struck at Calvary, He got a piece off of Him. और अब उस सिद्ध सर्वोत्तम रचना को सलीब पर भाला मारकर एक टुकड़ा परमेश्वर ने उसमें से अलग किया। It's just the New Testament, that's all. He fulfilled the Old Testament. Now it's the New Testament, another piece to be fulfilled. वह नया नियम पूरी तरह से पुराने नियम को पूरा कर रहा था और अब इस नए नियम का एक टुकड़ा फिर से उस सर्वोत्तम रचना में जुड़ना है। See, the new and old is husband and wife. And taking the new to the old to foreshow the new. देखिए कि नया व पुराना पति और पत्नी सरीखे हैं, समझे गए आप? और पुराने नियम ने नए नियम की प्रतिछाया दी है। Christ come the masterpiece to fulfill that. Now His bride will fulfill everything that's in the New Testament. मसीह उसी को पूरा करने आया, अब उसकी दुल्हन वह सब पूरा करेगी जो नए नियम में पूरा करना है। Another masterpiece is in making. एक और सर्वोत्तम रचना का निर्माण हो रहा है। Has it taken Him 4,000 years to make this masterpiece? Now He's been for nearly 2,000 years making another masterpiece, a bride for Christ, another masterpiece. जिस प्रकार की परमेश्वर को उस सर्वोत्तम रचना को बनाने में 4,000 वर्षों का समय लगा, अब उसी तरह वह इस सर्वोत्तम रचना को बनाने में लगभग 2,000 वर्ष का समय लगा रहा है। यह एक और सर्वोत्तम रचना है जो मसीह की दुल्हन है। The bride, if the bride in the beginning was the word of the bridegroom, ध्यान दें कि दुल्हा शुरू में अगर वचन था, and then if the bride is taken from the bridegroom, it must be the word also. और फिर दुल्हन उसमें से निकाली गई, तो फिर उसे भी वचन ही होना चाहिए। Notice, the bride must be, why? Why must the bridegroom be the word manifested, made plain? ध्यान दें कि दुल्हा वचन का जीवंत प्रकटीकरण था, तो दुल्हन को भी वैसा ही क्यों होना है? बात साफ है। Is because the bride and the bridegroom are one. She's just a smitten piece off of him. क्योंकि दुल्हा और दुल्हन एक ही हैं। दुल्हन उसी में से अलग किया हुआ एक भाग है। There's the masterpiece. It was smitten. Set. यही वो सर्वोत्तम रचना है जिसे चोट मारी गई। Michelangelo could not reproduce that again. He could not put it back. But God's going to do it. माइकल एंजेलो उस टुकड़े को फिर से वहाँ नहीं लगा सका, मगर परमेश्वर वैसा करने जा रहा है। He's going to bring this little bride smitten right back to the side of the original word, and there he is. वह इस अलग छटकी दुल्हन को फिर से वचन के उसी भाग में लगाने जा रहा है, और यही वह सर्वोत्तम रचना है। There's the masterpiece. The family back again in Garden of Eden. यही सर्वोत्तम रचना है,